हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेड रॉट ऑफ शुगर केन। कंटेंट्स हैं इसके: इंट्रोडक्शन टू रेड रॉट ऑफ शुगर केन, सिम्टम्स ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर डिजीज़ ऑफ शुगर केन। बहुत कॉमनली पाई जाने वाली ये डिज़ीज़ है। आपने देखा होगा कि गन्ने में रेड रेड से पैचेस जो है वो नोट्स पर पाए जाते हैं। ये जो बीमारी है वो यही है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड फ्रॉम जावा बाई वेंट इन 1893. It is widely distributed throughout the sugarcane growing countries of the वर्ल्ड। सभी कंट्रीज़ में जहाँ भी शुगर केन की पैदावार होती है वहाँ पर ये डिज़ीज़ जो है बहुत कॉमन है। द डिज़ीज़ वॉज वेरी वाइड स्प्रेड एंड विरुलेंट इन नॉर्थ बिहार एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस ड्यूरिंग 1939 एंड 1942. It was so destructive that it almost wiped out the sugarcane plantation in those areas. तो 1939 और 1942 में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली थी यूनाइटेड प्रोविंसेस में और नॉर्थ बिहार में, और इसने पूरी शुगरकेन की फसल को बर्बाद कर दिया था। ये आप देखिए इस चित्र में रेड रॉट ऑफ शुगरकेन के सिम्टम्स हैं, और ये सिम्टम्स आपने वैसे भी देखे हैं कि नोट्स के ऊपर रेड रेड पैचेस होते हैं। यदि आप उसकी स्लाइड बनाएंगे तो आपको कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम के कॉनिडिया जो हैं वहाँ पर मिलेंगे। तो ये इसके सिम्टम्स का चित्र है। सिम्टम्स ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। The first external evidences of disease are the drooping, withering and finally yellowing of the upper leaves. This is followed by a similar wilting of the entire crown, and finally the entire plant shows indication of diseases and dies. When not severe, the eyes frequently die and blacken and the dead areas extend out from the nodes. तो एकदम प्लांट जो है वो ड्रूप आउट हो जाता है, येलोइंग हो जाती है लीव्स के ऊपर, और एकदम से विल्टिंग हो जाती है, और प्लांट जो है वो एकदम से कमज़ोर होकर जो है मर जाता है, और इसमें ये ब्लैकन हो जाता है और रेड नोट्स के ऊपर रेड हो जाता है। Infection in the stem being internal, the presence of the disease is not visible externally. Upon splitting a diseased cane during the early stages of the disease, it will be found that the fibrovascular bundles near the base are reddish in color. The host tissues reacts vigorously to the presence of the fungus, and some kind of reactions or change sets in the host cell in advance of the hyphal invasion. The protoplasm changes color and gummy dark red material oozes out of the cells, filling the intercellular spaces. The soluble pigment present in this ooze is absorbed by the cell wall, producing the characteristic red rot appearance. तो जो मटेरियल है इसका, जो कॉनिडिया है, वो इसको क्या करते हैं, बहुत कमज़ोर कर देते हैं टिश्यू को, और टिश्यू से जो रेडनेस है वो एकदम से ऊज आउट होने लगती है। However, the presence of a red color in the fibrovascular bundles is not necessarily an indication of this disease, since the color may be due to any one of the many other causes. As the disease advances, the red color spreads to the surrounding tissues, extending through many internodes, and irregular discolored blotches are formed, which may be reddish or yellowish or white with red margin. These white areas with red margins are a positive proof of the disease. When the stem is completely rotted inside, the natural bright color of the rind disappears and turns dull as it shrivels. Black specks appear on shriveled rind. The stem shrinks at the nodes. Split cane gives sour smell and show red tissues with white cross bands. ये इसके symptoms हैं. About this time, the upper leaves of the stem turn pale and gradually droop down. These leaves then wither at the tips and along the margins. Ultimately, the entire plant withers and droops down. In areas where the disease appears in a severe epidemic form, the entire crop withers and droops, resulting in a complete loss of crop. Though the fungus attacks all parts of the host,
above ground stems and midribs of the leaves are more susceptible to fungal attack. Infection in the leaves is visible along the midrib as dark reddish zones having tendency to elongate rapidly, turning blood red and closed by dark margins. When the infection becomes old, और द सेंट्रल ब्लड रेड कलर चेंजेस टू स्ट्रॉ कलर, तो ये कलर जो है वो स्ट्रॉ कलर में चेंज हो जाता है लेटर स्टेज में. द हाइफी आफ्टर रेमिफाइंग इन द इन्फेक्टेड होस्ट टिश्यू कलेक्ट बीनीथ द एपिडर्मिस एंड फॉर्म ए स्ट्रोमा ऑफ डेंसली पैक्ड सेल्स एंड अल्टीमेटली एन एसर बुलस इज डेवलप्ड रिजल्टिंग इन द रप्चर ऑफ होस्ट epidermis. The acer bullus bears long septate CT along with short conidiophores on which falcate, that is sickle shaped conidia, are born. तो क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है होस्ट टिश्यू के ऊपर तो जो बॉडी बनती है वो बनती है एसर बुलस. एसर बुलस के अंदर क्या होते हैं, कॉनिडियोफोर्स होते हैं और कॉनिडियोफोर्स पर क्या लगते हैं, कॉनिडिया लगते हैं. ये कॉनिडिया कुछ सिकल शेप्ड होते हैं, है ना. तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है. सिकल शेप्ड कॉनिडिया जो हैं पॉलीटोट्राइकम के भी होते हैं और फ्यूजेरियम के भी होते हैं. तो दोनों की कॉनिडिया जो हैं वो सिकल शेप्ड होते हैं, लेकिन इसके जो कॉनिडिया हैं पॉलीटोट्राइकम के वो थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं और जो फ्यूजेरियम की कॉनिडिया हैं वो थोड़े से लंबे और पतले और सिकल शेप्ड होते हैं. आफ्टर ग्रोइंग फॉर ए पीरियड विद इन द होस्ट टिश्यूज़, the hyphae produce a large number of chlamydospores in the pith parenchyma. The chlamydospores persist in the soil for a long time. जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे क्या होता है कि लार्ज नंबर क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं पिथ पैरेंकाइमा के अंदर. लेकिन ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉइल के अंदर बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं. तो ये इसकी एक क्या होती है, डॉर्मेंट स्टेज होती है, जब सॉइल में क्लेमाइडोस्पोर्स पड़े रहते हैं लंबे समय तक और जब भी हम अगली बार फसल को लगाते हैं तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो एक्टिव रोल प्ले करके वापस से प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं. एन एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज्ड tissues with a microscope will reveal more or less mycelial threads of the fungus, or if the diseased canes are split and put in a moist chamber, the fungus will develop readily and be easily recognized, है ना. तो आसानी से इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. अब आते हैं हम कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन. अभी हमने बताया ही था आपको कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज़ किससे कॉज होती है, कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम से. तो ये परफेक्ट स्टेज है ग्लोमेरुला ट्यूकेमेनेंसिस की. ठीक है, ये आर्क्स एंड मुलर ने इसको बताया था. Others said that it cannot attack mature canes except through wounds, but that it can attack young plants. However, the young canes are usually protected by the leaf sheaths. In some places, the fungus has been reported to grow on the dead canes only, and the disease is not known. The mycelium of the fungus grows both inter and intracellularly in the parenchymatous cells of the host tissue. The hyphae are colorless, slender, freely branched, and septate. Acer bulli appear just above or below the nodes along the depressions or ridges. तो आप जानते ही हैं कि जब कोई भी कॉनिडिया किसी भी सतह पर परपोशी की यानी होस्ट की सतह पर जब गिरता है तो वहाँ क्या करता है, सबसे पहले उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो होस्ट सेल को पेनिट्रेट करके गला देते हैं पहले तो, उसके बाद में उसका पेनिट्रेशन होता है. पेनिट्रेशन के बाद में दो तरीके होते हैं, या तो एक एप्रीसोरियम बनता है और सारी जो स्पोर्स की अंतर वस्तुएं हैं वो एप्रीसोरियम के अंदर आ जाती हैं और एप्रीसोरियम से फिर क्या निकलते हैं, हाइफी निकलते हैं. और ये हाइफी दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो इंटरसेल्यूलर अंतरकोशिकीय या फिर इंट्रासेल्यूलर यानी अंतराकोशिकीय. अंतरकोशिकीय जो है वो सेल्स के अंदर से निकलते हैं, कोशिकाओं के अंदर से निकलते हैं और अपना भोजन जो है वो कोशिकाओं के अंदर से प्राप्त कर लेते हैं. लेकिन जो इंट्रासेल्यूलर अंतराकोशिकीय हैं वो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है उनमें से निकलते हैं और उनसे हॉस्टोरिया जो हैं वो निकलते हैं और हॉस्टोरिया जो हैं सेल्स के अंदर चले जाते हैं और चूषकांग जिनको कहते हैं. हॉस्टोरिया के माध्यम से ये माइसीलियम जो है वो कोशिकाओं से अपना भोजन प्राप्त करता है. तो ये एक इसका
पैटर्न होता है। हाइफी जो है वो कलरलेस है, सिलेंड्रिकल है, फ्रीली ब्रांच्ड है और कैसा है, सेप्टेट है। They are black velvety bodies develop in clusters. Acerbuli are cupsidate with irregularly arranged setae. Accepted conidiophores 20 micron long and 8 micron wide, on which one-celled falcate conidia are born. Conidia are 16 to 48 micron long and 4 to 8 micron broad. They bear large oil globule in the center. Chlamydospores are terminal or intercalary. तो क्लेमाइडोस्पोर्स बाद में लेटर स्टेज में मैंने अभी आपको बताया था कि क्लेमाइडोस्पोर्स बन जाते हैं और ये क्लेमाइडोस्पोर्स या तो टर्मिनल स्टेज में लगते हैं या इंटरकैलरी लगते हैं। ये हार्ड इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, सख्त होती है और ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो सॉइल के अंदर गिर जाते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं लंबे समय तक और जब भी हम दोबारा फसल बोते हैं तो वहाँ पर ये क्लेमाइडोस्पोर फिर से उसको इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। The perfect stage was reported from India under cultural conditions in 1952 and under natural conditions on sugarcane leaves in 1953. It comprises of perithecia, which are globose superficial with bottom embedded in the host tissue. Asci are numerous, clavate and paraphyset bearing 8 ascospores which are aseptate, hyaline and elliptical. तो बाद में क्या बनते हैं, एसाई जो हैं बनते हैं, एसाई क्लेवेट होते हैं और उसके अंदर ऊपर की तरफ क्या मिलते हैं, पैराफाइसिस मिलते हैं। पैराफाइसिस का क्या काम होता है, पैराफाइसिस जो हैं जो कोनिडिया या एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, पैराफाइसिस उनको बाहर लिबरेट करने में अपनी हेल्प करते हैं। तो पैराफाइसिस जो हैं वो एस्कोस्पोर्स को बाहर लिबरेट करते हैं और ये प्रत्येक जो एसाई है उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं और एस्कोस्पोर्स कैसे हैं, ए सेप्टेट हैं, हाईलाइन हैं एंड इलेप्टिकल हैं। अब आते हैं हम डिजीज़ साइकिल पर। The sources of primary inoculum are the old fragmented stalks and leaves and other rubbish on which the fungus grows saprophytically and unknowingly planted diseased stalk during cultivation. Ratoon crops also serve as a source of primary inoculum. Opinions differ whether the fungus is strictly saprophytic or parasitic. तो होता क्या है कि जब हम फसल काट लेते हैं गन्ने की और फसल के साथ में बहुत सारे क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो झड़ कर मिट्टी में चले जाते हैं और मिट्टी के अंदर जो है ये लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। तो ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं या तो जो ओल्ड स्टॉक्स हैं, लीव्स हैं या जो कचरा है उसके ऊपर भी ये गिर जाते हैं, वहाँ पर ये फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है और ये फंगस जो है वो कैसी होती है, सैप्रोफाइटिकली ग्रो करती है और जब भी हम प्लांटेशन करते हैं तो ये डिजीज़ जो है उन प्लांट्स के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से इनका इनोकुलम एक तो बनता है और दूसरा जो है वो क्लेमाइडोस्पोर्स डायरेक्ट जो है वो फसल को संक्रमित करते हैं और फसल को इन्फेक्ट करके माइसीलियम ग्रो करके पूरे पौधे को संक्रमण पैदा कर देते हैं। तो ये जो फंगस है दो तरीके से काम करती है, एक तो सैप्रोफिटिक तरीके से भी करती है जो कचरे के ऊपर स्पोर्स पड़े हुए हैं और दूसरा पैरासिटिक तरीके से यानी परजीवी की तरीके से भी काम करती है। The conidia that are produced in the acerbuli developed along the midribs of the diseased leaves during primary infection form the secondary inoculum. They are disseminated by wind, rain splashes, irrigation water and also by insects. The conidia germinate readily by germ tube which on coming in contact with any hard surface, example soil particles or plant parts, forms aprisorium from which infection hypha is produced. तो ये एक तरीका है कि कोनिडिया एसरबुलाई के अंदर कोनिडिया बनते हैं। एसरबुलाई के अंदर कोनिडिया एक स्टेज पर डोरमेंट अवस्था में रहते हैं और जब भी एक्टिव स्टेज आती है तो वहाँ पर ये कोनिडिया जर्मिनेट करके होस्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं। The pathogens may gain entrance through the nodes at the leaf scars, through any kind of wound, through root primordia and seed cutting. The diseased canes are frequently found to be injured by insects, especially borers, and no doubt these wounds facilitate the entrance of the fungus, which in turn does much more damage than the insects.
Red rot is not a root disease, though roots are often infected by the fungus. High humidity due to waterlogging, weak growth of host plant for want of proper cultural operations. Continuous cultivation of the same variety of sugarcane in a particular locality and cultivation of susceptible cane variety in the neighboring areas are some of the aspects that help disease incidence and often to epiphytotic. तो होता क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्लेमाइडोस्पोर्स या कोनिडिया जो है वो प्लांट्स को संक्रमित करने का काम करते हैं। ये संक्रमण जो है रूट्स के द्वारा भी हो सकता है और ये संक्रमण एयरबॉर्न यानी कोनिडिया जो है वो एयरबॉर्न हो सकते हैं और वो होस्ट सरफेस पर गिरकर फिर से माइसीलियम की ग्रोथ जो है उनके अंदर हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर जहाँ पर ये फसल ऑलरेडी संक्रमित है वहाँ से कोनिडिया एयरबॉर्न तरीके से भी आ सकते हैं और क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा मिट्टी से भी आ सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से जो है गन्ने की फसल को संक्रमित कर देते हैं और कई बार ये डिजीज़ जो है वो एपीफाइटोटिक का रूप भी ले लेती है। ये आप देखिए यहाँ पर ये डिजीज़ साइकिल है रेड रॉट ऑफ शुगर केन की। ऊपर से आप देखेंगे तो होस्ट इन्फेक्शन थ्रू लीफ स्कार्स, वुंड्स एंड रूट प्राइमोर्डिया। तो तीनों से या तो ऊपर कोनिडिया जो है वो गिर के क्या कर रहे हैं, लीफ स्कार्स या वुंड्स के थ्रू कोनिडिया जो है अपना माइसीलियम ग्रो कर रहे हैं या फिर रूट्स के द्वारा जो है संक्रमित करने का काम कर रहे हैं। एसरबुलाई बनते हैं। एसरबुलाई में कोनिडिया जो है डॉर्मेंट फेस में प्लांट डेब्रिस और जो डिजीज्ड स्टॉक खेतों में पड़ा रहता है उस पर पड़े रहते हैं और जब ये इनको एक्टिव अवस्था मिलती है, एक्टिव अवस्था में ये अपना माइसीलियम बना लेते हैं और होस्ट को संक्रमित कर देते हैं। दूसरा डायरेक्ट एसरबुलाई से कोनिडिया जो है वो एयर के द्वारा जो है होस्ट को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी साइकिल्स हैं। तो इस प्रकार से कोनिडिया जो है वो होस्ट को संक्रमित करते हैं। अब हम आते हैं कंट्रोल पर। कंट्रोल में क्या होता है कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज़ हार्ड टू कंट्रोल बिकॉज द स्टॉक फ्रॉम विच सीड्स आर प्रिपेयर्ड हैज़ बीन लार्जली अफेक्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लांटिंग एंड फंजीसाइड्स कैन नॉट रीच द इन्फेक्टेड टिश्यूज inside a diseased seed set. Therefore, careful selection of red rot free seed sets is recommended for planting. Seeds should always be taken from disease free nurseries examined regularly by the cane protection staff. तो शुगर केन की जो फसल है वो हम किससे, स्टॉक के द्वारा ही करते हैं। तो स्टॉक को हमें बहुत कीनली, बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि वो स्टॉक हेल्दी है या नहीं है। तो उन्हीं स्टॉक को हम सीड सेट के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एग्ज़ामिन जो है बहुत सावधानी से हमें करना चाहिए क्योंकि कई बार माइसीलियम जो है वो इंटरनली बॉन्ड होता है और हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता है। तो उसको हमें सावधानी पूर्वक जो है उसका प्लांटेशन करना चाहिए। Before planting, each seed set should be carefully examined and those sets which show reddening should be discarded. जो रेड दिखाई देते हैं, जो सीड सेट जो हैं रेड दिखाई देते हैं स्टॉक्स, उनको हमें तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए। The spread of the red rot can be prevented during the growing season by timely rowing and burying of the affected clumps with utilization of the green leaves for cattle fodder. In no case ratoons of sugarcane should be kept in the red rot affected fields. Attention should always be given to sanitation by digging out stubbles of diseased canes and burning them with other trash in the field. तो ये हम जानते ही हैं कि जो भी डिजीज़ स्टॉक्स हैं उनको हमें उखाड़ देना चाहिए और उनको जला देना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें नहीं रखना चाहिए और इनको हमें तुरंत जो है वो नष्ट कर देना चाहिए। Where facilities are available for hot water treatment of seeds, they can be utilized for controlling red rot of seed. Treat in water at 50 degrees centigrade for 2 hours. Treating seeds with fungicides like Rasan 0.25% is often effective. तो 2 तरीके हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए, या फिर हम जो फंजीसाइड है रासन उसका 0.25% घोल जो है वो इसको रोकने में कुछ कई बार इफ़ेक्टिव होता है। The use of sugarcane varieties resistant to red rot is also recommended. Some of the resistant varieties are Co 9075, 1148, 1158, 1336 and 6611, Co S
561, 574, BO3, 10 एंड 47, ये कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं। तो आजकल क्या है, हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं जिससे डिजीज़ से बचा जा सके। The possibilities of an epidemic is very much minimized with the practice of long crop rotation 2 to 3 years where planting is done in plots। तो हमें क्रॉप रोटेशन पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। 2-3 साल तक हमें जो है दूसरी क्रॉप लगानी चाहिए, तीसरी साल में जाकर हम वापस शुगर केन का प्लांटेशन कर सकते हैं, जिससे जो क्लेमाइडोस्पोर्स सॉइल के अंदर मौजूद हैं वो धीमे धीमे उनकी जो तेज़ी है इन्फेक्ट करने की, संक्रमित करने की, वो धीमे धीमे ख़त्म होती जाती है। One of the best ways to reduce the incidence of the disease is to raise healthy stock for planting in plots, especially fertilized, cultivated and kept disease free by constant care। तो हमको हेल्दी स्टॉक्स जो है प्लांटेशन के लिए तैयार रखना चाहिए और हेल्दी स्टॉक को ही हमें लगाना चाहिए। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।